السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. فرمائے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سال تو وہ میلاد مناتے ہی ہیں تو لیکن اس سال جو میلاد منایا بڑی نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی، بڑا نیا نیا کچھ اس میں لائے اور ڈھول اور باجے اور کیا کیا، یعنی وہ کیسا یعنی وہ کیا کہ دیکھ کے تعجب ہوا. ہاں ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ہاں کنٹرول کرنا بھی نہیں چاہتے. اصلی میں جتنی بھی چیزیں نئی نئی ایجاد ہوئی ہیں بعد میں اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ہاں پہلے شروعات تو کرا دیتے ہیں بیچارے، لیکن لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو کنٹرول نہیں کر پاتے، شاید کرنا بھی نہیں چاہتے. اور وہ تو جنے کہتے ہی کر رہے ہیں. اب تو جی اب کچھ دن بعد 5 مسلک ہیں، 7 مسلک ہو جائیں گے کچھ دن بعد. یہی لگتا ہے. نہیں حضرت نہیں، ایک تو یہ پیلی بھیت والے بنائیں گے، یہ کہیں گے بھائی مسلک اعلیٰ سے بریلی والے بھی کہتے ہیں. ہاں اور ہم نے ان میں فرق کیا رہے گا؟ ہم ڈھول بازے سے وہ تعزیے کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ بریلی والے منع کرتے ہیں، ڈھول بازے سے تعزیے کو حرام قرار دیتے ہیں. اچھا. اور بریلی والے عورتوں کو جانے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، یہ پیلی بھیت والے جائز قرار دے رہے ہیں، وہ بھی مسلک اعلیٰ کو مانتے ہیں یہ بھی. تو اب یہ کہیں گے بھائی ایسا ہے، مسلک امام اعظم تو دیوبندی بھی کہتے تھے تو مسلک اعلیٰ کہا جا رہا. اب یہ شروع ہوگا کہ مسلک اعلیٰ تو بریلوی بھی کہتے ہیں، یہ مسلک حشمت علی کا ہو، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک حشمت علی کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت. پھر یہ بریلی والے کہیں گے کہ نہیں، مسلک اعلیٰ تو پیلی بھیت والے کہتے ہیں اور ہم وہ اعلیٰ سے حرام قرار دیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلک اظہری میاں کہیں یا موقف اظہری میاں اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا کریں، یعنی ان میں ڈبل ٹبل مسلک ہو جائیں گے. پھر اچھا انہیں 4-5 جماعتیں ان کی بھی بن گئی ہیں. ارے وہ تو ان میں تو پھوٹ پڑتی رہے گی، ایسا نہ ہو کہیں 72 ان میں ہی ہو جائے. 72 جو یہ زیادہ تر ہی ہے، ایک حدیث پڑھتے ہیں نا 72 سو کہوں گے جہنم میں جائیں گے. ہاں جی. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کہیں نہ ان میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں بہت سارے. جی. اچھا اب دیکھو یہ دعوت اسلامی سے 3 ٹکڑے ہو گئے ان میں. اچھا ان کے بھی ہو گئے 3. ایک تو بمبئی میں بنی تھی، زکریا مسجد میں اس کی میٹنگ لی تھی جی، اسماعیل حبیب مسجد میں. اچھا ہاں تو اس میں میٹنگ لی تھی تو 165 امام جمع کیے تھے اس میں. جی. مولانا قاری ظہیر صاحب جو بمبئی میں ابھی امام ہے، زندہ ہیں. اچھا. تو ان کو کٹر سنی مانا جا رہا تھا اس زمانے میں کہ یار انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف میٹنگ لے کر زکریا مسجد میں دوسری سنی دعوت اسلامی بنائی. اچھا. اس کا نام رکھا سنی دعوت اسلامی. سنی دعوت اسلامی مطلب یہ ہو گئی وہابی دعوت اسلامی. اچھا. جیسے پہلے ایک ہی تھی دعوت اسلامی، تو اس کے مخالف میں یوں بنائی کہ یہ سنی نہیں ہے، کٹر یعنی یہ ایسی ہیں مشکوک قسم کے لوگ ہیں. تو اس کا نام ہے سنی دعوت اسلامی، تو یہ ہو گئی وہابی دعوت اسلامی. جی یعنی یہ میرے حساب سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے حساب سے. اچھا. جی. تو اس کا امیر بنایا شاکر رضوی کو سفید پگڑی بنا کر. اچھا. سفید پگڑی باندھ کر. اب پھر جب سے ریاض قاضی ٹی وی میں آیا، پہلے ٹی وی کو کہتا تھا مارو شیطان کو، جس گھر میں ٹی وی ہوتی پھڑوا دیتے تھے. جی. یعنی ٹی وی پھڑوائی بھی انہوں نے شروع میں بہت ٹی وی پھڑوائی. اچھا. اب بعد میں لوگ جب انہوں کے اوپر وہ معاملہ غالب ہوا نفس امارہ کا، تو انہوں نے خود ٹی وی کو جائز ہی قرار نہیں دیا، بلکہ خود ہی آ رہے ہیں. اب تو رات دن ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ریاض قاضی. 24 گھنٹے چلتی ہے سر، وہ 24 گھنٹے لگاتار وہ چلتی ہے ان کی مدنی چینل. تو پھر وہ احمد آباد میں جو ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ ان سے ناراض ہو کے ایک جماعت اور بنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کے بیچ میں. اس کا نام ہے سوسائٹی دعوت اسلامی. اچھا سوسائٹی دعوت اسلامی. ہاں مطلب دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کے بیچ میں ایک جماعت اور بنی سوسائٹی دعوت اسلامی. اچھا. اب وہ کہیں جا نہیں پاتے یار، ہم کس منہ سے کہا جائیں ہندوستان میں کہ لوگ کہیں گے تم کون سی ہو، تو ہم کہیں گے سوسائٹی کے لوگ. ابھی تک تو دعوت اسلامی اور سنی اب یہ کہاں سے نہیں پیدا ہو گئی، اس لیے وہ وہیں کہیں ختم ہو جا رہے ہیں. تو صحیح موجود، لیکن وہ کہیں آنا جانا نہیں رکھ پاتے. اچھا کوئی کام کر نہیں رہے وہ. تو اب جائیں تو کس منہ سے جائیں گے؟ ان سے بھی خلاف ہے، ان سے بھی خلاف ہے، تو اب جائیں تو کس منہ سے کہا جائے گا. صحیح بات. اس لیے وہ بن بنا کے وہیں کے وہیں ختم ہوئے جا رہے ہیں احمد آباد میں. اللہ مطلب ان میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دو نہیں. اب کچھ دن بعد دیکھنا آپ اور سننے کو ملے گا کہ ان میں آپس میں اور جھگڑے ہوں گے، دیکھنا آپ. حضرت میاں ہاشمی کون ہے، یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟
ये तो बस दौलत मिल जाए इन्हें और कोई बात हाँ। नहीं, दौलत दे दो, ओहो। कहीं के भी गुन गा लेंगे। हजरत उनकी तो कितनी पूजा होती है, क्या 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 कुछ होता है, उनको तो सजदा करने को लोग तैयार हैं, और इतना सजदे जैसे सलाम करते हैं झुक के उनके। अल्लाह। तकरीर में न तो कुरान की आयत है न हदीस है, बस हाँ। डायलॉग बाजी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत क्या होगा ये कुछ, इसके लिए दुआ भी तो फरमाए, आपकी कोशिशें भी जारी हैं इसमें, माशाल्लाह बड़ा फर्क पड़ा है, बड़ा फर्क पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे। दुआ भी करें तो होगा कि आगे चलकर फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है हजरत, बड़ा फर्क पड़ा है। सुलह कुल्ली जो है ना, इनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे हमारे लोग उधर जा रहे हैं, हमारे लोग जो ये निकलने नहीं देते अपने पंजे में से। हाँ सही बात। तो लेकिन ये मीडिया आ गया है ना, तो मीडिया की वजह। अब मुबारकपुर बचा है इनके यहाँ, एक ही मदरसा बचा है अशरफिया मुबारकपुर में। अच्छा। वही सबसे टॉप का मदरसा है अभी। अच्छा। अगर वो खत्म हो जाए बरेलियों से, समझ लो फिर बरेलियों की खत्म है फिर। अच्छा। वो पहले खत्म, वो अलग तो हो रहा था पहले शुरू में जी, लेकिन वो एकदम डर बिठा देते ना बरेली वाले, ऐसे भाजपा वाले बिठाते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे डर बिठाते हैं, ऐसे आरएसएस भाजपा वाले बिठा देते हैं, तो फिर वो वापस वैसा का वैसे ही हो जाता आदमी। तो वो जी, पहले जी, अलग जी, हो रहे थे, मामला आ रहा था ऐसा कुछ मुबारकपुर वालों का। जी। तो फिर वो बरेली वाला ऐसा हुआ बिठाया कि वो भी मतलब की हालत करने लग गए। अच्छा। देखिए अभी भी अंडरग्राउंड वो लोग खिलाफ हैं। अच्छा। अंडरग्राउंड तो खिलाफ है, लेकिन जाहिरी तौर से बरेलवी यूँ बने हैं कि अभी हमें अपना मार्केट बनाए रखना है। अच्छा। तो अगर वो अलग हो गए इनसे, यानी वो बरेली वालों से इनकी हो गई अगर जम के, अच्छा। तो खत्म, फिर बरेलियत ही खत्म हिंदुस्तान से, दुनिया भर हाँ। जाएगा। तो कुफर बाजी के आपसी कुफर बाजी के फतवे भी चल गए ना अब इनमें, वो भी एक बात तो दूसरे मैं को। इलाहाबाद में था, बात आ गई थी, वो उसी मदरसे के अलग करने की बात आ गई थी बरेलियों के नजदीक। जी मैं खुद भी था उस मीटिंग में इलाहाबाद वाली में, जैसे जी सेमिनार जी। कहते हैं ना, वो नमाज चलती ट्रेन में होगी कि नहीं। अच्छा जी। हालांकि मैं मधु नहीं था, लेकिन मैं घुस गया था, मेरा जान पहचान थी, तो मैं साथ में इन लोगों के मौलवियों के पीछे हो गया था। अच्छा जैसे मधु कर दे उलमा से बैठ सकते थे उस हाल में, बड़ा हाल बुक किया था आशिक और रहमान जी। हबीबी साहब ने। अच्छा। तो उसमें एक ने मशवरा दिया था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम मालूम हो जाएगा क्योंकि वो आलिम जिंदा है अभी, 100-150 आलिम थे कम से। अच्छा। तो अभी तो आलिम जिंदा है जो बता देंगे भाई इसने कहा था। उसने एक ने कहा था कि अशरफिया का बाईकाट किया जाए, वो अब सुन्नी इदारा नहीं। जी। तो ये तो मुझे याद है कि जिसने वो मना किया, ये कहा कि बाईकाट किया जाए, उसका याद नहीं, लेकिन उनका याद है जो अभी जिंदा है। काजी अच्छा। शफीक उर रहमान शरीफी इलाहाबाद के जो काजी शहर हैं, उन्होंने मना किया कि नहीं, वो अभी हमारा सुन्नी इदारा है, इसे बाईकाट नहीं किया जाएगा, अभी हम अच्छा। उनसे बात करेंगे। अच्छा। तो ये तो मुझे याद है वो, मगर वो याद नहीं है किसने एतराज किया था कि बाईकाट किया जाए। अच्छा। अब इससे अंदाजा लगाओ, 100-150 हिंदुस्तान के मशहूर आलिम आके बैठे हैं। उनने एक आलिम हाँ। ये कह रहा है कि अशरफिया का बाईकाट करो, कोई भी उसे डांट नहीं रहा, बरेली का आलिम अच्छा। कोई भी नहीं कर रहा है। मर्दू शैतान इतने बड़े इदारे का बाईकाट कर रहा है जहाँ से जिसकी वजह से बरेलियत बची हुई है पूरी दुनिया में, वहीं के फारिग गए हैं। यानी जी। अल्लामा अरशदुल काजी वहीं से फारिग, कमरुज़्ज़म आदमी वहीं से फारिग, उबैदुल्लाह खान आदमी, यानी टॉप के सभी आलिम वहीं से फारिग हैं। वहीं से फारिग। तो लेकिन किसी आलिम ने 100 में से किसी ने 100-150 में किसी ने कहा शैतान तूने ऐसा क्यों कहा, तूने भी। अच्छा। यानी इससे अंदाजा लगाओ इनमें कितनी कट्टरपंथी और कितनी इन लोगों में ये खबासत है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि क्यों तूने ऐसा क्यों कहा है। अच्छा। अकेले काजी शफीक साहब ने कहा कि नहीं ऐसे बाईकाट नहीं होगा, बस खाली उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो भी इसलिए कि वो इलाहाबाद के शेर काजी थे। अच्छा। हाँ। वो वहीं पर सेमिनार था, तो उनकी इजाजत सब खामोश हो गए। अच्छा। हाँ, अगर उनके बाद कोई अगर और बोलता, फिर जरूर इनने आपस में फिर पटका पटकी ऐसे कुश्ती होती ना, ऐसी हो जाती फिर। जी। अच्छा। अगर कोई कहता है शफीक उर रहमान तू चुप रहे, तू सुलह कुल्ली मत बन, तू क्यों हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि अच्छा। वो शहर के काजी थे, अगर इतना कुछ उनके खिलाफ कोई बोल देता तो फिर शहर के लोग आके उठा के मारते, फिर इन मौलवियों को पटक पटक के मारते। जी जी भाई जी। शहर काजी का वो होता है ना, वजन होता है, एक मकाम होता है। हम अगर वो उनके खिलाफ कोई बोल देता, वो दरअसल फोन कर देते, शहर के लोगों को मालूम हो जाता, तो फिर तो गिरा के मार लेते इन लोगों को, बरेलवियों को मारते थे वहाँ पर। लेकिन वो ये रहा कि उनकी वजह से लोग खामोश हो गए जब उन्होंने कहा ना ऐसे बाईकाट नहीं होगा, हमारा सुन्नी इदारा है। और ये ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं कह रहा, कोई समझे लच्छे कुच्छे ये
चुटकुले छोड़ रहा है, वो फेकम फाक कर रहा है। अभी मौजूद है लोग बाग, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 7 साल पुरानी बात है, ज्यादा 7 या 8 साल पुरानी। अच्छा। और वो आलिम भी जिंदा है, वो काजी साहब भी जिंदा है। मेरी कल ही उनसे बात हुई है, कल ही बात हुई। अच्छा। वो इस मामले में कि वो काजी कौन थे, शेर पंजाब हजरत मौलाना शाही इमाम साहब उस्मान साहब, उस्मान साहब, उनसे एक बरेली मिलने चला गया था। तो ये बरेली लोग ये बातें उठाएंगे कि तू मिलने क्यों गया, तूने अपना नुकसान क्यों किया वहाँ जाके मिलने से। अब इतना अच्छा। बड़ी आप बताओ, इतनी बड़े शैतानियत है इन लोगों में। एक आदमी शेर पंजाब से मिलने चला गया तो बताओ वो इस्लाम पे खारिज हो जाएगा क्या है? बस यही है ना कि कोई इनसे मिले ना, पता मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तो ये तो ठीक हो जाएंगे, इसीलिए वो बाइकाट का कहते हैं। मारूफ साहब हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं और लखनऊ के स्कॉलर हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं। उन्होंने भी कोई तौबा, कोई वजाहतनामा नहीं किया कि मैं इसलिए गया था, मैं मेरा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। डरे, वो भी डर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो भी समझ रहे हैं कि हमारे बरेलियों में ही मक्कारियत भरी पड़ी है। इतनी मक्कारियत से कैसे काम चलेगा, दीन इस्लाम की कैसे खिदमत करेंगे फिर हम? हाँ, वो तो समझते हैं, वो तो अंदर समझ रहे हैं, लेकिन समझते हैं। वो तौबा वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ना कलमा पढ़ेंगे ना निकाह करेंगे। अगर ये कहें ना निकाह करो, दोबारा से कलमा पढ़ो, वो कह देंगे मैं तो अब देवबंदी हो रहा हूँ, सीधा सीधे मैं देवबंद चले जाता हूँ। और अगर देवबंद चले जाएंगे ना तो कम से कम 1 लाख पब्लिक हो जाएगी, देख लेना। वो हिंदुस्तान के मशहूर स्कॉलर हैं, वो तो उनके वो जब चैनल चलता है तो 1 घंटे में हजारों पहुंच जाती है जरा सी देर में। अच्छा, यानी एक चैनल का नाम वो मुझे देखना पड़ेगा, निकाल के मैं भेजूंगा लिंक आपको। निकाल के भेज देना। तो 1 घंटे में 10,000 20,000 न जाने कितना कितना हो जाता है। माशाअल्लाह। तो इसलिए वो उससे कह रहे हैं कि तू क्यों गया शेर पंजाब से मिलने, तुम्हें नहीं मिलना था। मतलब ये कि अपने काफिर समझते, तुम काफिर से मिलने क्यों गए? तो मतलब अगर मुसलमान समझ के मिले तो तुम्हारा निकाह टूट गया, इस्लाम से खारिज हो गए, ऐसे फतवे हैं। कहेंगे कि अगर बगैर मुसलमान समझ के मिले, भाई मुसलमान समझ के जो मिलेगा आदमी, बगैर मुसलमान समझे कैसे मिलेगा शेर पंजाब? बताइए बात ऐसे फंसते हैं, अल्लाह फंसाता है ना इनको, कुछ जवाब नहीं बन पाता इनके पास। मान लो अगर मारूफ रजा ने कहा कि ठीक है, अगर मेरा ये कसूर है कि मैं शेर पंजाब से मिला, तुम कह रहा तौबा करो, वजाहतनामा पेश करो, कलमा पढ़ो, तो अब मैं भी खुल के सामने आऊंगा। जितने भी जामे अजहर में जाते हैं फतावा रज़िया के हिसाब से सब पर तौबा लाजिम है, तजदीद निकाह लाजिम है, चलो कराओ। अच्छा, वो तो पैसे वाला आदमी हो, कहते 10 टिकट में दूंगा जामे अजहर के, चलो तुम आजकल तो वीजे वो पासपोर्ट बने हुए हैं, चलो 10 टिकट में दूंगा और सब लेके चलते हैं, मैं खुद चलूंगा ताकि तुम झूठ बोलोगे, मैं अपने 2-3 साथियों को ले जाऊंगा और जामे अजहर में चल के बताऊंगा, जामे अजहर में 8 दिन रहो 10 दिन रहो, मैं दूंगा खर्चा। वहाँ पर सारा माहौल टोटल वही माहौल है जिसके ऊपर तुम कुफ्र के फतवे लगाओगे। जी जी जी। नहीं, अगर उसने जामे अजहर का मसला छेड़ दिया तो सभी भाग जाएंगे जल्दी। जी जी। क्यों, जामे अजहर एक ऐसा मैटर है कि वो अगर 10 टिकट भी निकाल के दे देंगे ना, बल्कि 4 टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। अगर इस नीयत से जाए कि वहाँ से आगे सच्चाई बताएंगे और हकीकत हाल बताएंगे कि क्या माहौल है, तो 4 टिकट के मैं भी पैसे देने का वादा करता हूँ। लेकिन वो मारूफ रजा ने अगर कह दिया ना 10 टिकट के मैं दूंगा तो 4 मैं मिलाऊंगा उसमें। अच्छा, आपकी मेहनत है, ताकि ये मसला ही साफ हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, ऑल वर्ल्ड में, कि है क्या हकीकत क्या जाना दर। ये बदगुमानियां गलतफहमियां लोगों में भी डाली हैं, खुद भी गलतफहमी का शिकार है हजरत। अगर ये कोशिश करें नेक नियति के साथ अपनी इन बदगुमानियों को दूर करने की कोशिश करें, गलतफहमी को, तो बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। हाँ, कुछ देवबंदी भी दूर करें, देवबंदियों में भी कुछ गड़बड़ है, इनमें भी बहुत सारे लोगों में, इनमें जो नए पीढ़ी आई है ना देवबंदियों की, जी जी, इनमें भी बड़ी खबासत है। अब मैं आपको बताऊं, जिस मस्जिद में मैं बैठा हूँ ना जी, ये नन्ही बी वाली मस्जिद है हमारे अफसरन में। अच्छा, एक नदवे से आके आलिम ने नमाज पढ़ाई यहाँ पर। अच्छा, और उसने जब दुआ मांगी तो दुरूद शरीफ में बड़ा दुआ जोर से कर रहा था, मैंने सुन रहा था। हाँ, तो मुझे आइडिया था नहीं पड़ेगा, वो वही हुआ कि उसने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा और दुआ मांग के खत्म कर दी। मैंने एकदम एतराज कर दिया खड़े होके। मैंने भी नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कुछ नहीं पढ़ा। तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं सब सुन रहा था, नहीं आपने दुरूद शरीफ तो पढ़ा नहीं। तो उसने साफ कह दिया कि हदीस से साबित ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के लोग इतने ठंडे, इतने नॉर्मल, ये देवबंद वाले, यानी देवबंद वाले इतनी नरमी तबली जमात होती है कि कुछ भी कर लो वो तो पढ़ लेते हैं और इन्हें कोई मतलब ही नहीं। वरना उदयपुर में अगर इतना कहता है तो उठा के पटक देते उसको। अच्छा, अगर उदयपुर चित्तौड़ बरेली इलाके में इतना कहते हैं हदीस से साबित नहीं करते, एक रेपटा मारते और नमाजें दोहराते, सब नमाज दोहराते, जाने मत देना भी,
जब तक इस बात कितना सबके लिए दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, क़यामत की निशानियां नहीं, हैं। उसने कहा आलिम था, लगने से फारिग था, वहाँ विकास नगर में इमामत कर रहा है लखनऊ में। हाँ, साफ के लिए हदीस से साबित नहीं। अल्लाह के हदीस में ये भी है तो है ना भाई, कोई दुआ भी कबूल नहीं होती दुरूद शरीफ के बगैर। बता, आप भी आलिम हो, आप भी फारिग हो देवबंद से, आप देवबंद से फारिग हो ना? नहीं, मैं थाना भवन से। थाना भवन से फारिग हो? बताओ, आप बताइए। आप हाँ जी, आप ही कह रहे हो कोई दुआ कबूल नहीं थी बगैर दरूद शरीफ के, वो कैसा आलिम से कह रहा है कि हदीस से साबित नहीं? अल्लाह देखो ना। अच्छा, फिर मैंने लाके फज़ाइल अमल बताई, मैं कि देखो ज़करिया साहब शेखुल हदीस ने लिखा है, किसे दुरूद शरीफ के फज़ाइल पूरा है, उन्होंने वो भी बताया। हाँ, चैप्टर ही जो है दुरूद शरीफ पे है, पूरा चैप्टर ही दरूद शरीफ पे, फज़ाइल है दुरूद शरीफ में। तो फिर मैंने थानवी साहब कोशिश करें, मैंने ये भी कहा कि थानवी साहब ने दादुल शहीद में लिखा है फज़ाइल दुरूद शरीफ पे पूरी किताब हजरत की। तो मैं कि हजरत ने लिखा है कि हजरत उमर का कौल नकल किया है कि दुआ में दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए, दुआ जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती है। तो क्या कह रहा कि थानवी साहब को हजरत उमर का कौल मिल गया होगा? यानी ये ऐसे जो आलिम है ना देवबंद नज़वा के, वो फिर मामला गड़बड़ कर देते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही रूखे हो गए, बदनाम करवाते हैं। जो इस मस्जिद का इमाम था वो तो पढ़ता दुरूद शरीफ, लेकिन उसने एजाजन खड़ा कर दिया था कि एक आलिम आया, चलो उससे पढ़वा लो ना। यहाँ का जो इमाम है वो तो पढ़ता है, पहले भी पढ़ता है बाद में पढ़ता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ नमाज। और आपने और ये जो तबलीग जमात के लोग हैं, इन्होंने अजान के बाद की दुआ पढ़ना बंद कर दिया है। अच्छा, ये ना हाथ उठा के पढ़े ना मुंह से पढ़े, तो इससे भी फर्क पड़ता है कि यार ये पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है। चलो हज़रत दुआ फरमाएं, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लामा अनवर शाह साहब का आखिरी कौल सुनो। इमाम मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोनों मकतबों के लोग अपने अपने आलिमों की बातों की तावीलें करने में लगे हैं। इस्लाम वहीं का वहीं है, उसका तो काम हो नहीं रहा। वो कह रहा हमारा आलिम सही है, वो कह रहा हमारा आलिम सही है। जी। मतलब गलतियां हैं दोनों की तरफ। अगर दोनों बसत के दिल कबूल कर लें कि बेशक हम निकलवा देते हैं किताबों से, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन जिद है कि नहीं, वो कहीं हमारी आलिम की गलती नहीं, वो कह रहा हमारे आलिम की गलती नहीं। भाई अब गलती मानना भी ईमान है। क्या ख्याल है आप? ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह। जी, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा शेर कश्मीर हज़रत मौला काजी सिद्दीक साहब का पैगाम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।